Hello everyone. So in our last lecture, we had discussed about the one NCERT syllabus topic. It means your textbooks topic, which was codominance, while the other rest of the extra topics are types of genes, in which we had covered two type of genes. One was lethal genes and the another was pleiotropic genes, right? So in the case of lethal genes, we had studied that kind of genes if present or that kind of alleles are present in the homozygous condition, then the person can die, or we can say they no longer survive. Then next we had discussed the types of gene. कौन सा था वो? Second one, pleiotropic gene, right? So in the case of pleiotropic genes, it was a gene that considered many kind of characters. Like single gene always express the one character, but here in the case of pleiotropic gene, the single gene can contribute their action to the multiple functions or multiple phenotypes, right? Now next we are going to cover in today's lecture the another type of gene, or we can say the phenomenon, is polygenic inheritance, or it is also called quantitative inheritance. Now as the name suggests, polygenic, it means more genes, we can say, right? So here it is actually opposite to the pleiotropy. So in case of pleiotropy, we have studied that one single gene can express many characters. Here, single character can be expressed by multiple genes. That is why it is called polygenic inheritance. So the inheritance of characters in which one character is controlled by many genes and intensity of the character depends upon the number of dominant allele. So here obviously we know now कि कोई भी एक कैरेक्टर है वो कंट्रोल होगा by the many genes, right? Single character but many genes. But the intensity of that character, we can say, is depend on the number of dominant alleles. So suppose if there is three type of many genes, so we can say many alleles also of all genes. So if three alleles are dominant, then the character is more severe, more concentrated. If four genes are dominant, then further more highly concentrated, right? So likewise अभी हम examples देखेंगे. We will take some examples so you can know the better, you can get better idea. But here the number of dominant alleles are always decide the intensity of the character. Okay, so let's see with the examples. Very first example suggests in humans we don't just have tall or short people as two distinct alternatives but a whole range of possible heights, right? So till now we are considering some two characters only, like either this or this. जैसे कि हम लोगों ने पी प्लांट मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, सो देर इज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, राइट? सपोज इफ पी प्लांट शेप की हम बात करें, देन राउंड एंड रिंकल, नो इन बिटवीन, राइट? But it is not possible in every kind of characters. So there are many characters which are not only two in number or two distinct features, but there is a whole range. जैसे कि इधर हमने लिया है example, the range of possible heights. So we cannot say just a person can be a 6 feet height or 3 feet height. There is a whole range like 3, 3.5, 4, 4.5, 5, likewise. So there is a whole range. So now such characters are controlled by many genes. The character is only one, that is height, but it is in whole range. So that is why it controls by the many type of genes. Okay. So let's see. Such traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called as polygenic traits. So obviously here many genes are involved to control the character. That is why it is called polygenic traits. Another example. So beside the involvement of the multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. For example, human skin color. It means what?
obviously the genes and their alleles are responsible for the character or the expression, but here in this case some environmental factors are also responsible for the intensity of the any character. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है ह्यूमन स्किन कलर. So the skin color is decided by the genes only. So from the parent, it means mother or father, which kind of alleles are present in the offspring, it will decide the color of the skin. But here some environmental factors also decide the color of skin. जैसे कि the skin tone, like dark tone, is also responsible for the melanin hormone concentration inside the cell. So the melanin, if melanin hormone is high in the cell, it means the skin tone is darker. If the melanin concentration is low, it means the skin color is light, which means white. Right? So, and this melanin concentration is mostly, it is a light sensitive enzyme, we can say, or hormone. So this light sensitivity is responsible for the, जैसे कि हम लोग डे टाइम में एग्जाम्पल ले सकते हैं सनलाइट. सो इफ सनलाइट इज हाई, ज़्यादा है सनलाइट, then this kind of melanin concentration will increases, and due to that the skin tone will be darker. If the sunlight is low or melanin concentration is low, so the skin color can be white or light, right? So the some examples are not only characterized by the genes but also environmental factors. Clear? So the inheritance of color of skin in human was studied by Davenport. He is a scientist, and human skin color is regulated by 3 gene pairs. So this kind of questions can be asked in multiple choice question MCQs of your competitive exam. So you have to remember that human skin color found by which scientist, there is how many gene pairs are involved, etc., and which gene suggests which kind of skin tone. So this is how this kind of questions can be asked from this topic, as this topic is your textbook topic also. So in this case you have to remember any single example and the theory for your theoretical exam, as this is your textbooks topic, NCERT syllabus topic. So you have to just take any one example and make them understand that what you are going to tell. Clear? You need not to write every example, because here we had taken many examples, so it is not necessary that you must take, but any one example whichever you like you can take and just explain the theoretical portion, right? So it is your theoretical portion, but we are considering some more examples also. Okay, so the human skin color is regulated by 3 gene pairs. When a negro black, it means most darkest tone, is responsible by the phenotype like all dominant 3 genes or 2 alleles. So here 6 alleles and all are dominant. So A, B and C. So 3 genes are A, B and C, and their alleles are A, B, B, C, C. So such dominant phenotype suggests darkest skin tone, which is negro black. If it is crossed with white skin tone, which is all recessive alleles of 3 genes, so small a, small bb, small cc phenotype, intermediate phenotype is produced in the first generation. So as you all know, this kind of cross, so if we take both parent as a pure genotype, so one having all dominant alleles and another having all recessive alleles, such parent can be crossed. So the first generation, F1 generation, is produced mixture of both. So dark skin color is dominant and their alleles are like this. Light skin color is recessive and their alleles are like this. Suppose if we do this experiment, so the negro black crosses with the white, and all dominant, all recessive. First generation is mixture of both. So one allele is dominant, another is recessive.
second gene also, B gene also, one allele is dominant, another is recessive, and C gene also, one allele is dominant, another is recessive. So such generation, first generation is intermediate brown and mulatto, we can say. ऐसी एक जनरेशन है फर्स्ट, वो मिलती है. सो हियर द डोमिनेंट एलील डिक्रीजेस, जैसे कि निग्रो ब्लैक में सारे के सारे यानी 6 एलील्स है वो डोमिनेंट है, बट हियर फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ 3 है. तो इट मीन्स दिस स्किन टोन इज नॉट वाइट नॉट ब्लैक बट इन बिटवीन. जैसे कि हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही कहा कि डोमिनेंसी है, डोमिनेंट एलील कितने प्रेजेंट है उस पे ये कलर की इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी, है ना. नाउ suppose if we do self cross of this first generation, then what will be the second generation phenotype ratio? So the second generation phenotypic ratio will be negro black, ऐसी possibilities आएगी 1, very dark brown, so ये black से अभी light धीरे धीरे होती जाती है skin, so such ratios can be found 6, then dark brown 15, mulatto यानी in between 20, light brown 50, very light brown 6, and the last white 1. So here the parental combination can be found 1, 1. Rest all are intermediate. So here we can say the series of skin tone. It is not like that ki one dark black color and white color. No, in between also there are many results which are possible for the skin tone. Clear? Next, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं. सो थर्ड एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल हमने जो लिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर, बोथ आर वी कैन से एनिमल्स एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट वी आर कंसिडरिंग द प्लांट कैरेक्टर. तीसरा हम प्लांट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को. सो हियर इन द केस ऑफ प्लांट वी आर टेकिंग व्हीट प्लांट. So the color of wheat is regulated by 2 pairs of genes. The genes are R and B. So as you all know, parental combination are pure. One is purely dominant and one is purely recessive. So if both the genes allele are dominant, then the color will be red. So the red color wheat is, if crossed with the white color wheat plant, then the first generation is obviously the mixture of both and it is intermediate in color. So capital R, small r, capital B, small b. Then second generation, yani F2 generation, if we self-cross this intermediate progeny, then the second generation can be found in many ranges. So the ranges are full red as the parental combination found 1, then light red 4, intermediate 6, very light 4, and the white again similar parent जैसा 1. So in all this range, if we see their genotype, then the number of dominant genes found, full red में dominant genes होते हैं 4 और alleles we can say 4, लाइट रेड में होते हैं 3, इंटरमीडिएट में होते हैं 2, जैसे कि इधर आप देख सकते हो डोमिनेंट आर एंड बी सिर्फ 2 ही है, वेरी लाइट में 1 एंड द वाइट में 0, कोई भी डोमिनेंट नहीं है. तो जिस हिसाब से डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होते हैं वैसे कलर की इंटेंसिटी होती है, ये भी इधर प्रूफ होता है. जैसे कि 4 सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है जीन के, तो वो कलर में होता है डार्क रेड यानी फुल रेड, मैक्सिमम रेड कलर जितना हो सकता है वीट में. देन धीरे 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 लाइट होता जाता है कलर बिकॉज डोमिनेंट एलील है वो कम होते जा रहे हैं. सो हियर ऑल्सो वी प्रूव दैट कि इंटेंसिटी ऑफ द कलर और द एक्सप्रेशन इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट. ठीक है. सो रिजल्ट ओवरऑल हमें क्या मिला, 1 रेड मिला, 1 वाइट जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसा, रेस्ट 14 आर इंटरमीडिएट. सो हियर ऑल्सो द होल रेंज ऑफ यानी कलर ऑफ सीरीज ऑफ कलर्स, रेंज ऑफ कलर्स. सो इट इज नॉट लाइक दैट आइदर वाइट और रेड कलर इज फाउंड. No, but in between also many color ranges are found. So such examples, such characters are controlled by the many genes. It is not possible for single gene to carry out the function of many range, right? Next topic we are going to cover is completely based on your competitive exams related, right? So the topic suggests
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. ठीक है, नाउ द इनहेरिटेंस इज बिकॉज ऑफ cytoplasmic combinations. Okay, so let's see what it's trying to say. So first of all, this cytoplasmic inheritance discovered by the Correns scientist, and the inheritance of characters which are controlled by the cytogene or cytoplasm is called cytoplasmic inheritance. Now, अब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो ऐसे जीन्स और ऐसे डीएनए से जो भी कैरेक्टर हैं वो कंट्रोल होते हैं, उसको बोलते हैं इन शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो यू मे क्लियर दैट दिस कॉन्सेप्ट वांट टू से व्हाट, राइट. जीन्स which are present in cytoplasm called cytogene, plasmogene or extranuclear gene. So because this is out of the nuclear, because we are talking here in the cytoplasm, है ना, साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं कि उसमें क्या है, वैसे जीन्स की बात कर रहे हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, क्योंकि मोस्टली डीएनए है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, एंड द जीन्स आर ऑन द डीएनए. बट हियर we are discussing the cytoplasmic inheritance. It means the extranuclear genes. Clear? So ये सारे नेम हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के, साइटोजेंस के ही हैं. ठीक है, एमसीक्यू के लिए याद रखना है. Now the total cytogen present in the cytoplasm is called plasmon. अब जितने भी साइटोप्लाज्म में टोटल जीन्स हैं उनको एक साथ कंबाइनली बोला जाता है प्लाज्मोन. अ जीन which is located in the nucleus is called कैरियोजीन. ठीक है, प्लाज्मोन मीन्स जो कि साइटोप्लाज्म में जीन्स है और न्यूक्लियस में जो जीन्स है उसको बोलते हैं कैरियोजीन. ठीक है, नाउ इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन्स इन ऑर्गेनिजम्स अकर्स ओनली थ्रू द फीमेल, इट मीन्स फ्रॉम द मदर. सो ये आपको खास याद रखना है एमसीक्यू के लिए भी और फ्यूचर स्टडीज के लिए भी. ठीक है, कि जो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ मदर में से ही इनहेरिट होता है. यानी इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में फादर का कोई रोल होता नहीं है. ये जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे जो कि साइटोप्लाज्म के जीन्स के थ्रू आ रहे हैं वो सारे के सारे फ्रॉम द मदर ओनली आएंगे. ठीक है, so it occurs only through the female. Because female gamete has karyoplasm, simultaneously it has cytogene, because it is more in cytoplasm or more of cytoplasm. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होता है और उसमें ये साइटोजीन्स भी ज्यादा होते हैं. दैट इज वाई इट इज ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर और वी कैन से फीमेल. Thus inheritance of cytogenes occurs only through the female. It is also called maternal inheritance, क्योंकि ये मदर में से पास ऑन होती है इनहेरिटेंस. सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को अनदर वर्ड में क्या बोला जाता है, मैटरनल इनहेरिटेंस ऑल्सो. एंड इट इज फिक्स्ड ऑलवेज, ये मैटरनल में से ही, मदर में से ही आएगी इनहेरिटेंस. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग एसेंशियल ऑर्गेनल्स लाइक chloroplast and mitochondria called as organellar inheritance. So ये organellar inheritance क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऐसी ये दो ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है एंड दे possess their own DNA, राइट. तो न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही होता है, बट दिस बोथ ऑर्गेनल ऑल्सो कंटेन देयर ओन डीएनए. सो इस अभी डीएनए है, इसका मतलब जीन्स भी हैं. सो ये कैसे जीन्स हो गए, साइटोजीन्स हो गए अल्टीमेटली, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है. सो आउट ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो इन दोनों में से क्लोरोप्लास्ट अभी आपको पता है सिर्फ प्लांट में होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सो ह्यूमन में जैसे कि अगर हम बात करें तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो हम में आता है वो मदर में से आता है ऑब्वियसली, बट मदर में से भी कहाँ से, सो ये माइटोकॉन्ड्रियल जो भी जीन्स होते हैं उसमें से आता है. इट मीन्स दिस माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज कम्स फ्रॉम द मदर सेल. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स को लेके डिस्क्राइब करते हैं, सो यू विल गेट मोर आइडिया. तो पहला एग्जांपल है
प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा प्लांट। ठीक है, तो जैसे कि इस मिराबिलिस जलापा में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना, व्हाइट फ्लावर एंड रेड फ्लावर, तो दोनों मिलके बनाते हैं पिंक फ्लावर फर्स्ट जनरेशन में, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि डोमिनेंसी है रेड कलर की, वो कंप्लीटली शो नहीं होती है, इसलिए कलर भी है वो कुछ नया इन बिटवीन मिलता है। तो उसमें हमने बात की थी मिराबिलिस जलापा प्लांट की। इधर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक मिराबिलिस जलापा का। सो प्लास्टिड इनहेरिटेंस, प्लास्टिड मीन्स जो कि पिगमेंटेड वैक्यूल्स होती है जिसको प्लास्टिड बोलते हैं ना, उसमें कलर के लिए, पिगमेंटेशन के लिए मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट काइंड ऑफ प्लास्टिड, द कलर ऑफ द flower, color of the flower, color of the branches, leaves, they are mostly depend on this kind of plastids, right? So cytoplasmic inheritance was first discovered by Correns in Mirabilis jalapa. प्लांट में अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, तो कोरेंस के थ्रू मिराबिलिस जलापा में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इन दिस प्लांट ब्रांच और वी कैन से लीफ कलर इज decided by the type of plastid present in the leaf cells। तो यानी लीफ सेल्स में जो भी प्लास्टिड है उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं फॉर द कलरिंग और फॉर द पिगमेंटेशन, इट इज कंसिडर्ड बाय द प्लास्टिड। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं पहला फीमेल एंड मेल प्लांट का, जबकि फीमेल प्लांट में प्लास्टिड है वो पेल कलर के हैं और मेल प्लांट में ग्रीन कलर के। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, यानी इनहेरिटेंस है वो कहाँ से आता है, हेरिडिटी है वो मदर में से ही। तो अगर फीमेल है यानी मदर है वो पेल कलर के प्लास्टिड्स हैं उनके पास, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसकी भी ब्रांचेस है वो कैसे कलर की आनी चाहिए, पेल कलर की, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अगर उल्टा दे हम ग्रीन प्लांट ले जिसमें ग्रीन ब्रांचेस हो और पेल है उसको एज ए मेल ले हम, फादर ले। ठीक है, तो जो भी हमें आंसर मिलेगा फर्स्ट जनरेशन का वो सारी जनरेशन मिली हमें ग्रीन ब्रांचेस वाली। सो अगेन इट इज प्रूव्ड दैट ये जो प्लास्टिड है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पार्ट है एंड वो आता है मदर में से, यानी मदर में इस प्लास्टिड का कलर जो भी होगा वैसा ही होगा फर्स्ट जनरेशन की सारी ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। सो इट इज मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट। नाउ यू नो स्टेरिलिटी मीन्स दे आर नो लॉन्गर एबल टू फर्टाइल। ठीक है, तो ऐसी मेल स्टेरिलिटी में हम बात करें मेज प्लांट में, सो जीन ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इफ अ नॉर्मल मेल प्लांट crossed with a female plant which has genes of male sterility, then all the generation of male become sterile because a particular gene was present with female which was inherited by female। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मेल स्टेरिलिटी के जो भी कैरेक्टर होते हैं वो फीमेल के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होते हैं। तो अब अगर ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है तो हम लोग एक नॉर्मल मेल प्लांट ले रहे जो कि नॉर्मल है, दे आर एबल टू फर्टाइल, और हम ऐसा एक फीमेल प्लांट ले रहे जिसमें ये मेल स्टेरिलिटी के जीन्स प्रेजेंट है। तो अगर ये मेल स्टेरिलिटी है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू होती है तो नेक्स्ट जनरेशन में मेल स्टेरिलिटी के जीन्स आने चाहिए क्योंकि मदर में प्रेजेंट है। तो ऐसा ही हुआ कुछ आंसर, और फर्स्ट जनरेशन के जितने भी मेल प्लांट थे वो सारे स्टेराइल निकले। क्यों? क्योंकि उसमें मदर में से मेल स्टेरिलिटी के जीन्स थे वो आए थे। अगर ये मदर में से नहीं आते तो फादर तो नॉर्मल था, है ना, मेल प्लांट तो नॉर्मल हमने लिया था, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये मेटरनल इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसलिए जो भी फीमेल में कैरेक्टर्स थे मेल स्टेरिलिटी के वही आए नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन के सारे मेल प्लांट थे वो स्टेराइल थे, दे आर नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ फ्लावर और फ्रूट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, अल्बिनिज्म इन प्लांट। सो अल्बिनिज्म वी कैन से नो कलर, राइट। तो अगर कोई कलरफुल चीज है वो पूरी की पूरी व्हाइट हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, देन वी कॉल इट albinism in layman language, right, to make you understand. So gene of albinism found in chloroplast
and gene of albinism in maize is lethal. तो क्लोरोप्लास्ट जैसे कि आप लोगों को पता है उसमें क्लोरोफिल होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली लीव्स आर ऑफ ग्रीन कलर. बट अगर ये अल्बिनिज्म के जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं देन ग्रीन कलर के लीव्स की जगह पे वो कलरलेस आएंगे या तो पैचेस आएंगे वाइट कलर के और कलरलेस पैचेस हैं वो होंगे कई कई जगह पे. ठीक है, सो इसको बोलते हैं अल्बिनिज्म. और ये भी अल्बिनिज्म के जीन्स भी है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू ही इनहेरिट होते हैं और मेज में ये लीथल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, आयोछाप इनहेरिटेंस इन मेज. अब ये क्या है? सो आयोछाप इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रिप ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट कलर्स ऑफ लीव्स. तो आपने कहीं ऐसे लीव्स देखे होंगे जो कि लंबे होते हैं और उसमें ग्रीन एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स लाइंस होती है. ठीक है, बड़े बड़े पैचेस है वो व्हाइट कलर के होते हैं. अभी नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाऊंगी सो ज्यादा क्लियर होगा आपको कि कैसे पैचेस की बात हो रही है इधर. बट आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत ही कॉमन प्लांट है, लंबे लीव्स होते हैं और उसमें व्हाइट स्ट्रिप्स होती है. सो दिस काइंड ऑफ कलरेशन ग्रीन एंड व्हाइट स्ट्रिप्स इज बिकॉज ऑफ आयोझाप genes and inheritance, and this inheritance is due to the cytoplasmic inheritance. तो ऐसे कलरिंग के पैचेस के जीन्स है वो मदर में प्रेजेंट होते हैं और फ्रॉम दैट इट इनहेरिट टू द नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो भी आप लोग इमेज में देख सकते हो. नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो कि है Pochineurospora. This neurospora is a fungi and the name is like this because they look like neurons. ठीक है, सो नर्वस सिस्टम के जो भी न्यूरॉन सेल्स होते हैं वैसे कुछ दिखने में लगते हैं. दैट इज वाई दिस फंजाई कॉल्ड न्यूरोस्पोरा एंड द पोकी इज इट्स म्यूटेंट फॉर्म. ठीक है, सो न्यूरोस्पोरा इज अ फंजाई विच लुक लाइक अ न्यूरॉन. पोकी इज म्यूटेंट फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा. यानी नॉर्मली न्यूरोस्पोरा जो होती है फंजाई उससे कुछ अलग दिखते हैं. और ये अलग क्यों दिखते हैं? बिकॉज उसमें जीन्स में कहीं ना कहीं म्यूटेशन है वो हो गया. और ये म्यूटेटेड जीन्स, म्यूटेशन मीन्स यू ऑल नो राइट कि कुछ चेंजेस हो जाना यानी नॉर्मल से कुछ अलग हो जाना, उसको म्यूटेशन बोलते हैं. डिटेल में हम म्यूटेशन स्टडी करेंगे तब बात करेंगे. अभी के लिए म्यूटेशन मीन्स जो कि कुछ नॉर्मल जीन्स में चेंजेस आ जाए, भले ही छोटे चेंजेस हो बड़े हो, बट अगर कुछ चेंज आ गया है देन इट इज कॉल्ड म्यूटेशन. ठीक है, तो ये म्यूटेड जीन है, म्यूटेंट फॉर्म है न्यूरोस्पोरा का, उसको बोलते हैं पोकी एंड इट इज ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल जीन. ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन की वजह से ये म्यूटेंट फॉर्म है वो बनता है और प्रोड्यूस होता है एंड इट इज स्लो ग्रोइंग ऑन कल्चर मीडियम. तो अगर हम फंजाई पे स्टडी कर रहे हैं उसको ग्रो करवा रहे कल्चर मीडियम में लेबोरेटरी में तो ये स्लो ग्रोइंग है. जनरली इट इज फास्ट ग्रोइंग फंजाई है वो वेरी फास्ट ग्रो होती है बट दिस म्यूटेंट फॉर्म पोकीन्यूरोस्पोरा इज स्लो ग्रोइंग ऑन द कल्चर मीडियम. तो ये म्यूटेंट जीन की वजह से, और ये म्यूटेंट जीन कहाँ से आया? माइटोकॉन्ड्रिया से. और ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में से आया? मदर में से. सो अल्टीमेटली इट इज अ maternal inheritance or cytoplasmic inheritance we can say. So here the 5 example of cytoplasmic inheritance is completed and this is completely based on your competitive exam topic. ठीक है, so you need not to remember the whole theory, that is why I wrote here in small points. So you need not to worry about the theoretical explanation but just you have to remember the results and some points which are important for the MCQ. ठीक है, so आज के लेक्चर में हमने कवर किया वन टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट बुक जो कि एनसीईआरटी सिलेबस का है विच वॉज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और उसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं क्योंकि द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर, इसलिए उसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. तो ये टॉपिक था आपकी टेक्स्ट बुक का जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स हैं वो कवर किए थे. बट आप लोग कोई भी एक डिटेल्ड एग्जाम्पल लेके उसको थ्योरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ऑल एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, दैट आर फॉर योर एमसीक्यू पर्पस. ठीक है, नेक्स्ट हमने जो दूसरा टॉपिक कंसिडर किया वो था कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव बेस्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. क्लियर? सो 2 टॉपिक्स वी कवर्ड टुडे. In next lecture we are going to cover some more
theoretical portion of your syllabus as well as some extra notes for your competitive exam related. Okay,